ಔರಾದ್ ಬಿ ನಗರದ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 183ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗರ ಆಸ್ತಿ ನಿವೇಶನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಧೋರಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 18/11/2025ರಂದು ಔರಾದ್ ತಹಶೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ತಾಂಡಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿಗರು 3-4 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗರ ನಿವೇಶನಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿವಾಸಿಗರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಒಟ್ಟು 111 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಗ್ರಾಮ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ ಅವರು, ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 26/2/2024ರಂದು ಏಕ್ಲಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಈ ಮುಂಚೆ ದಿನಾಂಕ 18/8/2025ರಂದು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ 9 ತಾಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಔರಾದ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ 9 ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 183ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ನಿವೇಶನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 18/11/2025ರಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. उनको हक पत्रिका देना बोल के आदेश ऑलरेडी आया है, मगर 2022 में मार्च 2022 में 90 सीसी बोल के एप्लीकेशन ऑलरेडी भरे हैं. हम लोग तांडे के पूरे 111 एप्लीकेशन भरे हैं. हम बार बार तहसीलदार साहब के पास जाते थे. हम लोग तहसीलदार अलग अलग बदले हो रहे हैं, बार बार हम लोग जाते थे. अभी जो तहसीलदार है महेश पाटिल, इनको भी हम बार बार फॉलो किए. उनका कहना है कि मुझे ये नगर अभी ऑलरेडी सभी तालुका औराद तालुका में सभी ग्राम पंचायत में सबको हक पत्रिका दे दिया है, मगर नगर पंचायत में अब तक हक पत्रिका नहीं मिला है. क्यों? महेश पाटिल का कहना है, तहसीलदार महेश पाटिल का कहना है कि ये कुछ टेक्निकल इशू है. टेक्निकल इशू है बोल के हमको पिछले तहसीलदार भी वो तो कुछ भी काम नहीं किए आज तक, और हमारे तांडे 3 पीढ़ी से है, कुछ भी काम नहीं है. 3 साल से हम लगातार फॉलो कर रहे हैं. जब हम महेश पाटिल को सभी तांडे वाले जाके मिले, महेश पाटिल हम बोले उनको कि फाइल निकालो, मरो 111 फाइल में से अब तक खाली 73 फाइल ही उसका ये हुआ है, पंचनामा हुआ है. मगर अब तक खाली पंचनामा नहीं हुआ है. 111 जो एप्लीकेशन हम लोग डाले, अब तक वहाँ तक पंचनामा नहीं हुआ है. आपका काम हो जाता बोल के खाली आश्वासन दे रहे. और कर्नाटक सरकार ने ऑलरेडी आदेश दिया है, इसके बावजूद वो काम नहीं हो रहा है. और हमारे बाकी 9 तांडे हैं वो प्राइवेट लैंड में हैं. उसी के बारे में भी हम बार बार मनवी किए मुख्य अधिकारी को, पीडी ऑफिस में गए, अपना डीसी मैडम के पास गए. हम लोग सभी को लेके इसको दिए हुए हम लोग, और डीएमए ऑफिस बेंगलुरु में भी गए हम लोग कि हमारे तांडे को मालकाना हक दिया जाए बोल के. और हम सचिव जो कर्नाटक सरकार के सचिव रहते हैं उनको भी हम लोग दिए हैं. मगर हमारी दुर्भाग्य की बात यह है, हमारी नगर पंचायत में अब 3 पीढ़ी, फर्स्ट 1995 में हमारा अध्यक्ष था वहाँ पे, मगर वो कुछ दायरे में नहीं था. बाद में उसका दायरे में आते हुए भी आज तक उसका तांडे का मालकाना हक नहीं दे रहे.
मुख्य अधिकारी वहाँ पे विदाउट, अभी नगर पंचायत में टाउन प्लानिंग विदाउट अप्रूवल के वहाँ से 20-25 हज़ार रुपया लेके सबको खाता इशू कर रहे हैं वहाँ पे, मगर तांडे वाले को खाता इशू नहीं कर रही। खाता ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी आदेश है कि जो जूना पीढ़ी रहते हैं उनको खाता देना बोल के, ई खाता देना बोल के नया अभियान चालू किया है राज्य सरकार ने, मगर अब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा वहाँ पे। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहता हूँ और तांडे वाले को मालिकाना हक आप मीडिया भाइयों को वजह से मिले और ये न्यूज़ राज्य सरकार तक जाए और प्रशासन तक जाए और हमको मालिकाना हक दिलाने के हेल्प करे बोल के मैं ये निवेदन करता हूँ। और तहसीलदार को, जो बसरवाड़ी तांडा है, हम तहसीलदार को भी मनवी दिए हैं। सरकार का आदेश आते हुए भी आप लोगों ने अब तक इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की, कुछ भी काम नहीं किए। ऑलरेडी एकलार तांडा में ये हक पत्रिका दिए है ऑलरेडी, एग्जाम्पल है औराद में, एकलार तांडा में गवर्नमेंट लैंड ही है ये भी। और उसके बाद ये आदेश है। मैं कल ही डीसी मैडम के पास गया, मगर डीसी मैडम को बिल्कुल ही टाइम नहीं वहाँ पे, सभी लोगों को एक ही बार वहाँ पे छोड़ दे रहे। 5 मिनट में टाइम देते तो ऊपर जाके फ़ोन कर, जो भी टेक्निकल इशू है, जो अभी तहसीलदार को मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि ये टेक्निकल इशू है। मैं उनको बोला कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टीम रहते हैं, सरकार जो नियुक्त की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, उसको बात करके क्या प्रॉब्लम है बोल के कोई सोल्यूशन देने के लिए तैयार नहीं। आज तक ये प्रॉब्लम है, मगर आज तक जो भी प्रॉब्लम है डीसी मैडम को लिखना चाहिए तहसीलदार को कि ये प्रॉब्लम है, हम इसको क्या किया जाए, क्या मैनुअल दिया जाए हक पत्रिका, क्या किया जाए। मगर लोगों को, मैं खुद वहाँ पे सदस्य रह के मुझे भी नहीं मालूम था। मैं 2 महीने से सतत, मैं गया 18/8 को धरनी सत्याग्रह उपवास किया। मैं 2 दिन वहाँ पे बैठा, हम सब तांडे 12 तांडे के लिए। मैं बाद में 2 महीना घूमते हुए बाद में सरकार आदेश लिखा। हमारा लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ऑलरेडी आदेश है, सरकार का आदेश है कि सबको खाता देना बोल के, गवर्नमेंट लाइन में उनका हक पत्रिका देना बोल के आदेश है, पर ये आज तक किसी को नहीं मालूम था। हम तांडे में जाके सबको बुला के सबको बताइए हमारा हक हमको लेना ही होगा, हमारा हक कोई दिलाएगा नहीं। इसीलिए हम लोग तहसील में 18/11/2025 को आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अगर से 17 तारीख तक हमारी मांगे, हमारा खाता जो नगर पंचायत में जो आने वाले 12 तांडे हैं, उसमें से गवर्नमेंट लाइन में एक तांडा है बसरवाड़ी तांडा 183 सर्वे नंबर, हमारे अगर से आने वाले 18 तारीख तक 18/11/2025 हमारे खाते, हमारा मालिकाना हक अगर से नहीं दिया, हम बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। और मीडिया भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूं कि ये न्यूज़ राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए और उनको जगाया जाए कि लोगों की तकलीफ क्या है, उनको आपके माध्यम से उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे तकलीफ क्या है। ऑलरेडी आपका आदेश आते हुए भी कर्मचारी उसके ऊपर ये नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और इम्प्लीमेंट जो तलाटी रहते हैं तांडे में जाके पंचनामा करना चाहिए, पंचनामा भी नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट। और मुखिया जो हमारे नगर पंचायत के जो बाकी के प्राइवेट जो लैंड है वो भी 3 पीढ़ी से है, विदाउट टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड लेआउट के 20 से 25 हज़ार रुपया लेते सबका खाता इशू कर रहे। मगर हमारी दुर्भाग्य की ये बात है कि तांडे वाले को खाता इशू नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा तांडे को औराद नगर पंचायत में ये खाता, अब क्योंकि भारत देश में हमारे चौथे स्तंभ मीडिया भाई है और पूरा भारत में मुझे विश्वास है कि आप बहुत सारे न्यूज़ करते हैं और न्यूज़ के माध्यम से सबको न्याय और हक मिलता है। तो आप ये न्यूज़ हक पत्रिका दिलाने के लिए हमें मदद किया जाए। और हमारे नगर पंचायत में शौचालय 2022-23 में एसएफसी फंड समुदाय शौचालय और सार्वजनिक शौचालय 1 करोड़ 14 लाख का और 170 इंडिविजुअल टॉयलेट देना बोल के है। मगर आज तक हम बार उसको इनको मनवी किए, मुख्य अधिकारी को भी, मगर वो लोग इसका पैसा वो ऑलरेडी भ्रष्टाचार गए, वो लोग खा गए, कौन खाए मालूम नहीं।
और ये भ्रष्टाचार बाहर निकलना बोल के मैं पीडी साहब के पास में गया, 2 दिन पहले ही गया। मैं पीडी साहब बोलते हैं इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, और कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहे उस पे के ऊपर। पीडी बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मुझे दूसरा काम है बोल रहे। मैं सर को बोला मैं सतत आपके ऑफिस में 2-2.5 महीने से मैं घूम रहा हूँ, मगर इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए और जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करें बोल के हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं। और हमारे तांडे के बारे में भी विषय डाले उनको, और वो भी कुछ दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। उनकी क्या साठगांठ है मालूम नहीं मुझे। मुखिया अधिकारी और योजना अधिकारी जो शिवराज राठौड़ है, मैं बार बार जा रहा हूँ उनको, हमको दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है क्योंकि सीनियर अथॉरिटी है बोल के हम जा रहे हैं उधर। मैं मीडिया भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। म्युनिसिपालिटी में जो अपना जो जमा खर्च का जो खाते हैं उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है, अनलीगल, पूरा अनलीगल कर रहे हैं वहाँ पे। इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। और अमृत 2.0 योजना है, वहाँ पे गार्डन 1 करोड़ अभाव का है, उसमें भी अनलीगल टेंडर किए वो लोग ने। क्यों? उसमें एन अप्रूवल लेवल नहीं है, टाउन प्लानिंग अप्रूवल लेवल नहीं है, और उसमें CSI के लिए 54.99 और उद्यान के लिए 588 और नागरिक सौलभ्य के लिए 6.52 और रास्ते के लिए 32.61 ऐसे नियम है टाउन प्लानिंग के। उसमें जगह छोड़ना बोल के CSI, गार्डन और रोड, इसको विदाउट हैंडओवर एग्रीमेंट करते हुए पूरा लेवल अनलीगल है। वहाँ पे पैसा 20 से 25 हज़ार लेके पूरा अप्रूवल दे रहे, और जो अमृत 2.0 का